Morning to all. As you know, we are doing chapter number 4, that is change in profit sharing ratio among the existing partner. And in our yesterday's video, we had seen what do you mean by the reconstitution of partnership and what is the meaning of change in profit sharing ratio among the existing partners, as well as we had seen that at the time of change in profit sharing ratio among the existing partner, you have to do adjustment for change in profit sharing ratio, and the given 5 adjustment is to be made to bring into effect the new agreement. नया एग्रीमेंट इफ़ेक्ट में लाने से पहले आपको पुराने एग्रीमेंट के बेसिस पे ये 5 एडजस्टमेंट करने होंगे. In today's video, we will see the first adjustment, that is to see how to calculate sacrificing ratio and gaining ratio. That is, we will determine sacrificing ratio and gaining ratio. So the first adjustment we will do will be related to calculation of sacrificing ratio and gaining ratio. After going through this video, you will be able to know the meaning of sacrifice ratio and gaining ratio, as well as you will be able to calculate sacrificing ratio and gaining ratio during change in profit sharing ratio among the existing partners. So let us start. First, what do you mean by sacrifice ratio? So as you have seen yesterday that whenever there is change in profit sharing ratio, it means that one or more partner will sacrifice their share and the same amount of share will be gained by one or more partners. यानी जब भी आप change in profit sharing ratio की बात करते हो तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे और उतना ही शेयर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर गेन करेगा. तो यहाँ पे दो चीज़ें आएगी. कुछ पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करेंगे जिसको हम कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, एंड कुछ पार्टनर अपने शेयर दूसरे के शेयर को गेन करेंगे, यानी उनका शेयर पार्टनरशिप में बढ़ जाएगा. तो there will be gaining ratio. Now sacrifice ratio is the ratio in which one or more partners of the firm sacrifice their profit share in favor of one or more partners of the firm. यानी जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर देगा इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर, दैट इज नोन एज sacrificing ratio. And the formula to calculate sacrificing ratio is old profit share, that is the share in which you used to share profit as per the old agreement, and minus new profit share. Old share minus new share will be equal to sacrifice ratio. रीज़न यानी जब भी आप सेक्रीफाइस करोगे कुछ हिस्सा, यानी आपका ओल्ड शेयर जो था प्रॉफिट में वो ज़्यादा था, यानी आपका प्रीवियस शेयर ज़्यादा था जिसमें से आपने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया और दूसरे को दे दिया, और आपका जो नया शेयर है वो ओल्ड से कम होगा. तो द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड शेयर एंड द न्यू शेयर विल बी इक्वल टू sacrifice ratio. So to calculate sacrifice ratio, the formula used will be old profit share minus new profit share. Now in the same way, if one or more partner is sacrificing some part of its share in profit, then the other partner will be gaining the share. यानी अगर एक या एक दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उतना शेयर किसी दूसरे को मिल रहा है, and when the other partner is getting share in the profit, then it is known as gaining ratio. Gaining ratio is the ratio in which one or more partner gain profit share as a result of sacrifice share by one or more partners of the firm. यानी जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो उसके हिस्से का शेयर
उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, दैट पर्सन विल बी नोन एज गेनिंग पार्टनर, एंड द share, that is the ratio in which he will gain will be known as gaining ratio. And how to calculate gaining ratio? Gaining profit share will be equal to new share minus old share, यानी अपोजिट ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो. अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो में देख रहे हो तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस किया गया है, और जबकि आप गेनिंग शेयर को देख रहे हो तो न्यू में से ओल्ड को माइनस किया जा रहा है. तो रीज़न ऑब्वियस है, यानी कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो प्रीवियसली वो ज़्यादा शेयर ले रहा था, अब वो कम लेगा. तो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड माइनस न्यू विल बी सेक्रीफाइस रेशियो. एंड अगर हम गेनिंग रेशियो की बात कर रहे हैं तो अगर किसी पार्टनर को शेयर मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसका न्यू शेयर विल बी ग्रेटर देन हिज ओल्ड शेयर. नाउ let us see this with the help of an example, how to calculate sacrificing ratio and gaining ratio. So see the question. Amit and Sumit are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. There are two partners, Amit and Sumit, who were sharing the profit in the ratio of 2:1. It means old ratio was 2:1. Now it was decided by them to share profit equally from 1st April 2020 with effect from 1st April 2020. Calculate the sacrificing and gaining ratio. Now it is told that the profit share, new share will be equal. तो old share क्या था 2:1 and new share क्या होगा 1:1. This is new share, new ratio. So you have to calculate what will be the sacrificing ratio and gaining ratio. So let us see the solution. First write the old ratio. Old ratio कितना था दोनों का? Amit used to share 2 part out of 3 and Sumit used to share 1 part out of 3. Now they decided to share the profit equally, that is new ratio will be equal to 1:1. Old ratio है 2:1. अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर करना है इन द रेशियो ऑफ 1:1. कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. अब आप किस तरह से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे? नाउ सी हियर, we will not be able to understand who is sacrificing and who is gaining, यानी किसके केस में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाना है और किसके केस में हमें गेनिंग रेशियो लगाना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम फार्मूला जो हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, वही फार्मूला हम दोनों के केसेस में यूज़ करेंगे. यानी सेक्रीफाइस शेयर क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो आप ये फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई करोगे. यू डोंट नो हु इज़ गेनिंग एंड हु इज़ सेक्रीफाइसिंग, सो यूज़ द फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर फॉर बोथ द पार्टनर्स. ए के लिए भी यानी अमित के लिए भी आप वही फॉर्मूला यूज़ करो और सुमित के लिए भी आप वही फॉर्मूला यूज़ करो. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट अमित, हिज ओल्ड शेयर वॉज 2/3. अमित का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/3 and his new share is 1/2. yes, see old ratio आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें से 2 पार्ट्स अमित के हैं, जबकि न्यू रेशियो आपका 1:1 दैट इज़ 2 पार्ट में डिवाइड है जिसमें से 1 पार्ट अमित का है. तो ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 एंड न्यू रेशियो क्या है 1/2. तो सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 2/3, यानी 2/3 ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को आप माइनस कर दो. नाउ इफ़ यू सी द डिफरेंस, यू ऑल नो हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ द फ्रैक्शन. फर्स्ट डिनोमिनेटर आप सेम कर दो. डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? बोथ विल बी मल्टीप्लाइड, बोथ विल बी ब्रॉट इक्वल टू 6, दैट इज मल्टीप्लाई 3/2 एंड 2/3, that will be equal to 6, and numerator will be 4 minus 3 and the answer will be equal to 1/6. So now
डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। पहले हम सुमित का देख लेते हैं। अगर हम सुमित के शेयर को देखते हैं तो सुमित का जो ओल्ड शेयर था वो 1/3, यानी वो ओल्ड रेशियो में 3 में से एक हिस्सा प्रॉफिट का ले रहा था। अब नए शेयर में उसका जो शेयर है वो है 1/2, यानी सुमित अब अपने प्रॉफिट को शेयर करेगा 1/2 पार्ट में, जबकि उसका पहला शेयर था 1/3। Now again use the formula of sacrificing share. सेम फॉर्मूला यूज करो। sacrificing share is equal to old share minus new share। तो ओल्ड शेयर सुमित का था 1/3, 1/3 में से 1/2 को माइनस करो, देन आंसर विल बी इन माइनस, दैट इज 2 minus 3/6। द आंसर विल बी इन नेगेटिव, that is minus 1/6, and here you will be able to understand who is sacrificing and who is gaining. If your answer is in positive sign then it is known as sacrifice, यानी अगर आपका आंसर पॉजिटिव साइन में आएगा तो वो sacrifice होता है, and if your answer is in negative देन इट इज़ नोन एज गेन। यानी आप एक ही फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग शेयर का ही यूज़ करके दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो जस्ट बाय सीइंग द आंसर। अगर आंसर पॉजिटिव में है तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, और अगर आंसर पॉजिटिव में है अगर आंसर पॉजिटिव में है तो वो सेक्रीफाइस रेशियो है, और अगर आंसर नेगेटिव में है तो वो गेनिंग रेशियो है। Now let us see one more example related to sacrificing ratio and gaining ratio. Again, X, Y and Z are partners sharing profit and loss equally. It was decided that in future Z will get 1/5 share in profit. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice and gain of the partner. Now see, there are 3 partners X, Y, Z who used to share the profit equally, that is in the ratio of 1:1:1. Now it was decided that the future profit will be shared by Z in the ratio of 1/5 शेयर, यानी फ्यूचर प्रॉफिट में Z का जो शेयर होगा वो 1/5 होगा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस एंड द gain of the partner. Now see, in this question सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। एक तो ओल्ड शेयर के बारे में आपको बताया गया है कि ओल्ड शेयर कितना है। ओल्ड रेशियो जो है वो इक्वल था 1/1/1, दैट इज 1:1:1। अब यहाँ पे आपको न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि अब आज के बाद जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर होगा उसमें Z का जो शेयर होगा वो 1/5 होगा। अब तक Z का जो शेयर था वो कितना था 1/3, जबकि अब आने वाले प्रॉफिट में Z का शेयर होगा 1/5। इट मीन्स टिल टुडे वी यूज टू मेक 3 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, यानी आज तक हम प्रॉफिट के 3 हिस्से कर रहे थे 1:1:1 का। बट अगर यहाँ पे आपको Z से कहा गया है कि Z को आप 1/5 पार्ट दोगे, इसका मतलब है अब 3 की जगह आप प्रॉफिट के 5 हिस्से कर रहे हो। यस, सो before calculating sacrificing ratio and gaining ratio you have to first calculate new profit sharing ratio। यानी जब भी क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने से पहले आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। नाउ फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। लेट द प्रॉफिट शेयर बी 1। टोटल शेयर को हम एक हिस्सा मानते हैं जिसमें से 1/5 पार्ट Z का होगा। यस, यानी टोटल 1 हिस्से में से अगर 1/5 Z का हो जाएगा तो बच गया कितना 4/5। यस, यानी 1 के नीचे अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे 1 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो डेट विल बी इक्वल टू 5/5। यस, देन -1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5।
यानी अगर आपने z को 1/5 पार्ट दे दिया तो आपके पास जो बचा शेयर वो कितना है 1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। अब आपको नहीं पता कि ये जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 का वो x और y में किस रेशियो में शेयर करना है, क्योंकि सिर्फ z की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि z फ्यूचर प्रॉफिट 1/5 में शेयर करेगा, जबकि x और y का सिर्फ ओल्ड शेयर दे रखा है। यस तो अब ये रिमेनिंग शेयर x और y में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो आप किस रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो वेन एवर देर इज नो इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द शेयर टू बी given to the remaining partner, then it will be given in their old profit sharing ratio, that is equally। यानी अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताया है कि x और y का न्यू शेयर क्या होगा, तो आप जो भी आपका शेयर बच जाएगा नए प्रॉफिट का उसे उनके ओल्ड रेशियो में आधा, जैसे भी ओल्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो the remaining share, that is 4/5 share, will be distributed among x and y in their old profit sharing ratio। तो old ratio क्या था 1:1:1। अब z का तो पार्ट हट गया, तो x और y 1:1 रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते, यानी अब बचा हुआ शेयर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी 4/5 का हाफ पार्ट will be the share of x and 4/5 का half part will be the share of y, that is equal to 4/10 and 4/10। So the new ratio of x, y and z will be equal to 4/10, 4/10 and 1/5। यानी x का आपने देखा 4/10, y का आपने देखा 4/10 और z का आपको दे रखा है 1/5, बट द डिनोमिनेशन शुड बी सेम। तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो आपको यहाँ पे अगर 10 करना है तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो द शेयर विल बी 4:4:2। यस क्योंकि आप अगर ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड द शेयर विल बी इक्वल टू 4:4:2। सिंप्लीफाई इट, इट विल बी इक्वल टू 2:2:1। So new ratio will be equal to 2:2:1। Then अब आपने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया, सिंप्लीफाई दिस, द आंसर विल बी 2/2/2, that is 2:2:1। Now new ratio has been calculated, old ratio is also there in the question, use the formula to calculate sacrificing ratio and calculate the sacrifice or gain made by the partner। You can do this with the help of table, write name of the partners x, y and z, write their old share of x is 1/3, y is 1/3 and z is 1/3। तीनों का जो शेयर था वो 1:1:1 था, यानी 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, x का न्यू रेशियो है 2/5, y का न्यू रेशियो है 2/5 और z का न्यू रेशियो है 1/5। Yes, after this the difference will be the gaining or sacrificing ratio। यानी अगर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो गेन होता है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो वो सेक्रीफाइस होता है। सो 1/3 माइनस 2/5, 1/3 माइनस 2/5। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप 1/3 में से माइनस करोगे 2/5, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर सेम किससे होगा, 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। यस तो 1 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और 3 भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 × 3 अपॉन 5 × 3, जिससे कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 15। यस तो 1 × 5 दैट इज़ 5 माइनस 2 × 3 दैट इज़ 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम हो गया 15। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 में से -6, 5 - 6 दैट इज़ -1। So your answer is in -1/5. Yes, the answer is negative. That's why it is gain. Clear? Now in the same way for y.
y is also same amount of same old ratio and same new ratio as x, so the difference will be, that is gain will be 1/50. Okay, now let us see the sacrifice और gain of z. तो z का जो पुराना रेशियो था वो कितना था 1/3 और न्यू रेशियो जो है वो है 1/5. सो फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो जिससे कि डिनोमिनेटर 15 हो जाएगा. 5 माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड 3 5 ज़ा 15, दैट इज इक्वल टू 2/15. यस, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में है, इसका मतलब z ने सेक्रीफाइस किया है 2/15 पार्ट ऑफ हिज प्रॉफिट. यानी इस क्वेश्चन में गेनिंग पार्टनर है x एंड y एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है z. नाउ यू कैन सी द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ z इज इक्वल टू द गेन, एडिशन ऑफ गेन मेड बाय x एंड y. यानी जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा. तो सेक्रीफाइस एक से ज़्यादा पार्टनर भी कर सकते हैं और गेन भी एक से ज़्यादा पार्टनर कर सकते हैं. जैसे इस केस में सेक्रीफाइस सिर्फ z ने किया है अपने प्रॉफिट में से 2/15 पार्ट, और वो गेन दो पार्टनर्स को हुआ है, x और y को हाफ हाफ, दैट इज़ 1/5 पार्ट, x 15th पार्ट x को गेन हुआ है और y को भी 1/15 पार्ट का गेन हुआ है. So in this way you will calculate sacrificing ratio and gaining ratio.